الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ہم درس اذکار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کو تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہم نے تقریباً 3 آیات کو پڑھ لیا تھا اور آج جو ہے ہماری چوتھی آیت اور اس کے بعد والی 5ویں آیت کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تجوید کے مختصر قواعد اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ رب العزت. تو سب سے پہلا ہمارا کلمہ ہے ایاکا. کیا ہے؟ ایاکا. تو ایاکا میں سب سے پہلا حرف ہے حمزہ اور حمزہ پر ہے زیر. تو زیر زبر پیش کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور حمزہ میں تحقیق بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تحقیق، یعنی خوب صاف کر کے واضح کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر یا پر تشدید ہے اور الف بھی ہے. تو الف ہونے کی صورت میں یا کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور تشدید ہونے کی صورت میں یا کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. 1 مرتبہ تو جو پہلی والی یا اس کے اندر ساکن ہے اس کو اپنے ماقبل والے حرف متحرک سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ کچھ ٹھہر کر. دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ کچھ ٹھہر کر. تو اس طرح سے پڑھیں گے یا. کیسے پڑھیں گے؟ یا. ٹھیک ہے. یا پر الف ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھنا ہے اور کچھ ٹھہر کے جو تشدید ہونے کی وجہ سے ڈبل ادا کرنا ہے. کیسے ادا کرنا ہے؟ ڈبل ادا کرنا ہے. کاف پر زبر ہے تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو پورا کیسے پڑھا جائے گا؟ ایاکا. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ایاکا. نعبدو. نعبدو میں نون پر زبر ہے اور نون کو عین سے ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے. عین کیسا ہے؟ ساکن ہے اور عین کو ساکن ہی رکھنا ہے. عین کو متحرک نہیں ہونے دینا، وگرنہ بہت سے لوگ بے توجہی میں عین کو متحرک کر دیتے ہیں اور نعبدو پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ نعبدو. ایسے نحنو میں بہت سے غلطی کرتے ہیں، نحنو کو نحانو پڑھ دیتے ہیں. تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. عین پر ساکن ہے یعنی جزم لگا ہوا ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، اسے متحرک نہیں کرنا اور نون کو کھینچنا نہیں ہے. با پر پیش ہے تو با کو بھی نہیں کھینچنا ہے اور دال پر پیش ہے تو دال کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تو پورا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو. ٹھیک ہے. اب کسی نے پڑھ دیا نعبدو تو غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ با کھینچ دیا یا دال کھینچ دیا، نعبدو کر دیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. نہ با کھینچے گا نہ دال کھینچے گا. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو. پھر اگلا کلمہ آ رہا وہ ایاکا. تو واو پر زبر ہے، اسے بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے اور واو کو جو ہے واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرا جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے. وہ ایاکا کو یہاں پر سمجھا دیا تھا. ٹھیک ہے. ایاکا کو شروع میں سمجھا دیا تھا. تو کیسے پڑھیں گے؟ وہ ایاکا. اگلا ہمارا لاسٹ کلمہ ہے نستعین. کیا ہے؟ نستعین. تو نستعین میں سب سے پہلے نون ہے، نون پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. پھر دوسرا حرف اس کا سین ہے اور سین جو ہے ساکن ہے اور سین حروف جو ہے استفعال میں سے، مستفعلہ میں سے، یعنی اس کے اندر صفت استفعال ہے، حروف مستفعلہ میں سے ہے، صفت استفعال ہے اور اس کے اندر صفت صفیر بھی ہے. کون سی؟ صفت صفیر. یعنی یہ باریک ادا ہوگا. کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا، باریک. اور اس کے اندر سیٹی جیسی آواز آئے گی. کیسی آواز آئے گی؟ سیٹی جیسی آواز آئے گی. تو پڑھیں گے نس. کیسے پڑھیں گے؟ نس. تا پہ زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور عین پر زیر ہے، اس کے بعد یا ہے تو عین کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس پہ نستعین کلمے کے اندر ہمیں تا پر بہت توجہ رکھنی ہے. کس پہ توجہ رکھنی ہے؟ تا پہ. تا کو جو ہے کھینچنے نہیں دینا. نون تو صحیح پڑھ دیتے ہیں لوگ مگر تا پر غلطی کرتے ہیں. تا کو کیسے پڑھ دیتے ہیں؟ نستعین پڑھ دیتے ہیں. نستعین پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ نستعین. تا پر الف لگا دیتے ہیں، کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. تو اس پر ہمیں کھڑا زبر نہیں لگانا بلکہ تا پر زبر ہی رکھنا ہے. اور کیسے پڑھنا ہے؟ نستعین. بس زبر وہیں سے لینا. نستعین. ہاں کسی نے پڑھا
تو हो जाएगा नस्ताईन, ताईन वो गलत हो जाता है, खड़ा ज़बर हो जाता है। हमें वहीं से लेना है नस्ताईन, ठीक है, वहीं ज़बर लेके एकदम नीचे को ले आना है। तो यहाँ पर या साकिन है से पहले ज़ेर है तो ये मद है, उसे कहेंगे मद्दे असली। क्या कहेंगे? मद्दे असली। मगर अगर नून पर हम ठहर जाते हैं तब ये हो जाता है मद्दे आरिज़। तब क्या हो जाता है? मद्दे आरिज़। अगर मद्दे असली था तो सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच सकते थे, और अगर हमने नस्तईन के नून को साकिन कर दिया यानी पेश को गिरा दिया, मद्दे आरिज़ बन गया। मद्दे आरिज़ बनने की सूरत में हम इसे तीनों तरीके से खींच सकते हैं, लंबा करके भी, दरमियाना भी, और एक यानी कसर बिल्कुल थोड़ा करके एक अलिफ के बराबर भी खींचना। तीनों तरीके से पढ़ना इसे जायज़ होगा। अब यहाँ पर गोल दायरे की आयत है, तो इस गोल दायरे की आयत को ये बोली तो आयत जाती है, असल में ये भी अलामत ही होती है। क्या होती है? अलामत। और ये वक्फ़ ताम यानी आयत के मुकम्मल होने की अलामत होती है। यहाँ पर ठहरना चाहिए। यहाँ क्या करना चाहिए? ठहरना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया, फिर से पढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। नस्तईन, नस्ताईन ये गलत है, नमाज नहीं होगी उसकी, जो नस्ताईन पढ़ेगा। कैसे पढ़ना है? नस्तईन। ठीक है, इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इसका तर्जुमा है हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ठीक है, किसकी इबादत करते हैं हम? अल्लाह की। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। तो ये बताया जा रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। फिर से कह लेते हैं, वार हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ठीक है, और हमारी दूसरी आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इसमें सबसे पहले हमज़ा है और उसके बाद हा है। तो हमज़ा और हा दोनों का जो मखरज आया था वो शुरू हलक है। क्या है? शुरू हलक से हमज़ा अदा होता है। तो जब हम इह अदा करेंगे तो यहाँ पर जो शुरू हलक है यहाँ पर जोर देंगे। और कैसे पढ़ेंगे? इह। कैसे पढ़ेंगे? इह। कैसे? इह, क्योंकि दोनों इकट्ठा हो गए ना, हमज़ा और हा, और दोनों का मखरज क्या है? शुरू हलक। फिर दाल पर ज़ेर है तो बगैर खींचे पढ़ेंगे, नून पर ज़बर है और नून पर अलिफ भी है। तो अगर यहाँ पर कोई वक्फ करके पढ़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा इहदिना। कैसे पढ़ना पड़ेगा? इहदिना। अगर सांस तोड़ रहा है, सांस वैसे यहाँ पर तोड़ते नहीं है, तो अब नून को हम स्वाद में मिलाएंगे तो फिर इसका अलिफ गिर जाएगा। तो इसका अलिफ क्या होगा? गिर जाएगा। तो नून स्वाद ज़बर नस हो जाएगा, नून स्वाद ज़बर नस हो जाएगा। और स्वाद पर ज़ेर है तो ज़ेर को भी बगैर खींचे पढ़ते हैं, और स्वाद को समझ लेते हैं। स्वाद जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। यहाँ पर नस्तईन में आपको बताया था सीन बारीक होगा, यहाँ पर साद जो है मोटा पड़ा जाएगा। मगर दोनों के अंदर सिफत सफ़ीर यानी सीटी वाली सिफत दोनों के अंदर पाई जाती है। नस्तईन में भी सीटी आएगी और इहदिनस सिरा का स्वाद में भी क्या आएगी? सीटी आएगी। मगर नस्तईन का सीन बारीक रहेगा और इहदिनस सिरा का स्वाद जो है मोटा रहेगा। मोटा रहने के लिए तरकीब वो बताई थी आपको कि ज़बान की जड़ को हम ऊपर उठा देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? इहदिनस्सी, इहदिनस्सी। ठीक है, रा पर ज़बर है और उसके साथ अलिफ भी है, तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और रा के बारे में बताया था कि रा पर ज़बर पेश हो तो रा को मोटा करके यानी पुर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी रा को पुर करके यानी मोटा करके पढ़ा जाएगा। और रा को मोटा करने का तरीका आपको कई बार बता दिया कि ज़बान का अगला हिस्सा हम ऊपर उठा देते हैं और थोड़ा सा कपकपाता हुआ रखते हैं, तो मुकम्मल रा पुर हमारी अदा हो जाती है। तो कैसे पढ़ेंगे? सिरा। अब तो भी जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में से, तो इसे ही पुर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सिराता। ठीक है, और जब तो को नाम में मिलाएंगे तो हो जाएगा इहदिनस सिरातल। ठीक है, अब मुस्तकीम, तो मीम पर पेश है बगैर खींचे पढ़ा जाएगा, सीन बारीक है, ताप भी बगैर खींचे पढ़ा जाएगा। काफ को, काफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और काफ का मखरज है ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, जो ज़बान बिल्कुल आखिर में जड़ है उसको, जो उसके ऊपर तालु है नरम गीला गीला जो रहता है कौवे के बराबर में, वहाँ से जब हम ज़बान की जड़ को लगाते हैं तो हमारा कौफ अदा होता है। क्या अदा होता है? कौफ। तो कौफ को मोटा रखना है, और उसके बाद या है तो कौफ को एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। तो कैसे पढ़ेंगे? मुस्तकीम। अगर पूरा मिला के पढ़ते हैं हो जाएगा मुस्तकीमा।
बात समझ रहे हैं। और अगर मीम पर हम ठहर गए तो हो जाएगा मुस्तकीम। तो क्या हो जाएगा? मुस्तकीम। अब यहाँ पर भी गोल आयत है, तो गोल आयत को बारे में क्या बताया? ये वक्फ़े ताम की अलामत है, यानी आयत मुकम्मल होने की अलामत है, मगर उसके साथ साथ लाम अलिफ भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लाम अलिफ। तो लाम अलिफ के बारे में फरमाते हैं कि अगर ये आयत के ऊपर हो तो इसमें कुर्रा जो हजरात हैं, उलमा कुर्रा, उनका इसमें इख्तलाफ है। वो कहते हैं, बाज़ कहते हैं ठहरना चाहिए और बाज़ कहते हैं मिलाकर पढ़ना चाहिए। बाज़ क्या कहते हैं और बाज़ क्या कहते हैं? ठहर के पढ़ना चाहिए। तो दोनों तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ठहर भी सकते हैं और मिलाना भी जायज़ है। तो यहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं। तो पूरा कैसे पढ़ लेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, एक बार और पढ़ लो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, इसका तर्जुमा रह गया नीचे वाली आयत का। इसका तर्जुमा है हमें सीधा रास्ता चला। किसका तर्जुमा है ये? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। किसका? इहदिनस सिरातल। इसका तर्जुमा क्या है? हमें सीधा रास्ता चला। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझिए इसे और तर्जुमा सीख लीजिए नमाज का, और नमाज को समझ के पढ़िए। और जो हमारे नाज़रीन जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यही हमारा जो है, हमारी तरफ से ये पैगाम है कि उसको खूब गौर से याद करें, पढ़ें, समझें और समझ के नमाज़ पढ़ें। और अगर उन्हें चैनल अच्छा लग रहा है, कोई बाकी उन्हें लग रहा है कि हम कुछ इस चैनल के ज़रिए से सीख रहे हैं, तो इस चैनल को आगे भी शेयर करते रहें। क्या करते रहें? शेयर करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करते रहें और अपने कमेंट के ज़रिए से हमें आगाह भी करते रहें, हमारी हौसला अफजाई भी करते रहें।